محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور ایک بچہ جس نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بستی میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ اس بستی میں ہندو مسلمان دونوں رہتے تھے۔ وہ اللہ والے بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ہندو اور مسلمان کی بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے۔ اس بستی میں وقت کا قاضی جو ہندو تھا وہ ان سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، کیونکہ لوگ اللہ والے کی بات کو، ان کے فیصلے کو بہت زیادہ غور سے سنتے اور سمجھتے تھے۔ پھر وقت کا قاضی اس بستی میں جو فیصلہ ہوتا وہ کرتا تھا۔ اس قاضی کو اللہ والے بالکل بھی پسند نہیں تھے، وہ ان کو اس بستی سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اللہ والے کے پاس پورا دن لوگ آیا جایا کرتے تھے، اپنا ہر مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ وہ اللہ والے کے حکم سے اس مسئلے کا حل اس طرح نکال دیتے، لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ جاتے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد وہ کچھ مردوں کو دین کی تبلیغ دے رہے تھے۔ وہاں ان سے ملنے کے لیے ایک عورت آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو میں ان مردوں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ مرد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور وہ عورت بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی، اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اللہ والے اس عورت کی جو طبیعت اچانک خراب ہونے سے پریشان ہو گئے کہ اس وقت ان کے پاس ایسا کوئی انسان نہیں تھا جو ان کے گھر اس کو اٹھا کر لے جاتا، کسی کو پیغام بھیج دیا جاتا کہ اس کو آ کر لے جائیں۔ اس لیے انہوں نے اس عورت کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ وہ اللہ والے فجر کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اس عورت کو ہوش آیا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم میرے پاس کیوں آئی تھی؟ اس سے پہلے کہ عورت اپنا مسئلہ بیان کرتی، کچھ لوگ اللہ والے کے پاس آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو رات کو عشاء کے وقت آئے تھے، وہ فجر کے بعد بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ عورت ان کو دیکھ کر چلی گئی اور اللہ والے ان لوگوں کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے دین سکھانے لگے، اور اللہ والے کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور کوئی حسد نہیں تھا، مگر وہاں کے ہندو ان سے حسد کرتے اور جلتے رہتے تھے۔ یوں ہی دن مہینے گزرتے گئے اور اللہ والے دین کی تبلیغ اسی طرح کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہی عورت ان کے پاس آئی، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ والے اسی طرح دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس عورت کو دیکھا کہ اس عورت نے آتے ہی اللہ والے کے سامنے وہ بچہ لا کر رکھ دیا اور کہنے لگی، آپ اس مظلوم بچے کے باپ ہیں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہاں موجود تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب لوگ کبھی اللہ والے کو دیکھتے، کبھی اس عورت کو دیکھتے، کبھی اس بچے کو دیکھتے۔ وہ اللہ والے کچھ دیر خاموش رہے اور بڑی دیر خاموشی توڑ کر کہنے لگے، اے عورت، تو اللہ کے خوف سے کیوں نہیں ڈر رہی؟ تو کیا بول رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں اور یہاں کے ہندو مسلمان آپ لوگ سب بہت زیادہ عزت کرتے ہیں آپ کی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے آپ خود لوگوں کے سامنے اللہ والے بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے پوری بستی میں پہنچ گئی، اور جب یہ بات ہندو قاضی تک پہنچی، اس نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ والے کو، اس عورت کو اپنے دربار میں بلایا۔ تمام لوگ اس کے دربار میں پہنچ گئے، مگر اللہ والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پوری بستی وہاں پہنچی ہوئی تھی اور اس فیصلے کی منتظر تھی کہ آخر ایسا ظلم اللہ والے نے کیوں کیا۔ اب اللہ والے ابھی تک اس
उस दरबार में नहीं पहुंचे थे। सब लोग अल्लाह वाले को बातें कर रहे थे। मुसलमान जो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे वो भी उनके खिलाफ हो चुके थे। अब वहाँ अल्लाह वाले अल्लाह के हजूर सजदे में घिरे हुए और रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, इस वक्त तेरा बंदा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। या अल्लाह, तेरे इस बंदे पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है जिसे सुनकर तमाम पूरी बस्ती मुझसे नफरत करने लगी है। यहाँ तक कि दुश्मनों ने दौलत के ज़रिए सब कुछ खरीद लिया, इज्जत ज़मीर सब खरीद लिया। इस बस्ती में रहने वाले तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू मेरे दुश्मन बन चुके हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये लोग तो तुझसे नहीं डरते, मगर मैं हर हाल में, हर मुश्किल में, हर खुशी में सिर्फ तुझे पुकारता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, आज मैं एक मुजरिम की सूरत में अदालत में पेश होने के लिए जा रहा हूँ। आज तू मेरे हक में फैसला कर दे। और फिर वो हज़ारों कतार रोने लगे और फिर उठे, अल्लाह का नाम लेकर उस दरबार में चले गए। जब उस दरबार में दाखिल हुए, सब लोग इज़्ज़त एहतराम के साथ खड़े हो गए, यहाँ तक कि हिंदू काजी को भी खड़ा होना पड़ा। वहाँ वो अल्लाह वाले कहने लगे, दुनिया ने हमेशा अल्लाह के वलियों के साथ यही सलूक किया है, दुनिया हमेशा ऐसे ही करती है और करती रहेगी, ये काम सिर्फ हासदीन का है। वहाँ काजी बोला, अगर इस औरत ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है तो ज़रूर कुछ हुआ होगा, इसलिए इल्ज़ाम लगाया है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि औरत को कहो कोई गवाह पेश करे। इतना कहने की देर थी कि एक आवाज़ बुलंद हुई कि हाँ, 4 गवाह मौजूद हैं, हम गवाही देते हैं कि औरत पाक साफ है, उस अल्लाह वाले ने उसके साथ ज़िना किया है। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, क्या गुनाह किया है, उठो और मेरी मजबूरियों पर आकर गवाही दो। सुनकर वो सारे खामोश हो गए और वहाँ वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी कि मेरे लिए उठकर कोई गवाही दे, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे पर और मुझ पर ज्यादती हो रही है। वहाँ वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और वो भूल चुकी थी कि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली के सामने खड़ी है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ए औरत, तू खामोश हो जा और अपने गवाहों को भूल जा। तू ऐसा कर, इस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा, तुम पर ज्यादती हो रही है ना, ये बच्चा खुद ही तुझे बताएगा कि इसका बाप कौन है। जैसे ही वहाँ मौजूद लोगों ने ये सब सुना तो सब हैरान और परेशान हो गए। सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे कि एक दिन का बच्चा क्या बताएगा कि उसका बाप कौन है। वो औरत भी इस तरह हैरान और परेशान हो चुकी थी जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो औरत अपने आप को संभाल कर बोली और कहने लगी, हजूर, आप क्या कह रहे हैं, एक दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, इसका बाप कौन है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसने इस बच्चे को पैदा किया है वही इसको बोलने की ताकत भी देगा। तमाम हिंदू और तमाम हाजिरीन, तमाम दुश्मन कांप रहे थे और हैरान थे कि अगर इस बच्चे ने गवाही दी तो क्या बनेगा। वहाँ वो हिंदू काजी बोलने लगा, ये बोल ही नहीं सकता कि ये बच्चा गवाही देगा। अल्लाह वाले कहने लगे, हो सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब उस काजी हिंद ने उस औरत को हुक्म दिया कि इस बच्चे को सामने लाए। उस औरत ने कांपते हाथों के साथ उस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत बच्चा था और बड़ी ही मासूमियत और दुनिया से बेखबर सो रहा था। शायद उसको पता ही नहीं था कि उसके पैदा हो जाने पर आज इस बस्ती में कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। आज उसके पैदा होने पर अल्लाह का वली बना जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है। अब जैसे ही बच्चे के चेहरे से माँ ने कपड़ा हटाया, बच्चा रोना शुरू हो गया। वो काज़ी हिंद बोला कि ये बच्चा तो रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, आप इस दरबार का मजाक क्यों बना रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, आप इस बच्चे से इसके बाप का नाम पूछें। वो काजी हिंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में आकर कहने लगा, ए बच्चे, क्या तू अपने बाप का नाम जानता है। बच्चा मुसलसल रोता जा रहा था। काजी ने दोबारा वही सवाल दोहराया, क्या बच्चे, क्या तू अपने बाप का नाम जानता है। मगर बच्चा यूं ही रोता
पूछता रहा। तीसरी बार भी यही सवाल दोहराया गया और दरबार में तमाम लोग हैरत से उस बच्चे की जुबान से उसके बाप का नाम सुनना चाहते थे, मगर बच्चा सिवाय रोने के कुछ नहीं कर रहा था। काजी हिंद तो खुद डरा हुआ था। जब बच्चे ने जवाब न दिया वो खामोश हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि इस तरह औरत बच जाए और फिर हम अल्लाह वाले को सजा देंगे। काजी हिंद बहुत ही बड़ा तंज़िया अंदाज में अल्लाह वाले को कहने लगा, एक दिन के बच्चे से कोई बेवकूफ़ ही बात कर सकता है। ये बच्चे सिर्फ रो ही सकता है, जितनी भी कोई करामात दिखा ले एक दिन का बच्चा बोल ही नहीं सकता। इसलिए आप मान लें कि आपने ये गुनाह किया है और आप इस बच्चे के बाप हैं। वहाँ वो औरत फिर डरी हुई थी, मगर अब औरत खामोश हो गई और हंसने लगी। कहने लगी कि कब तक इस मजबूर औरत का मजाक बनाएंगे। मैं बार बार आप सबको कह रही हूँ कि इस बच्चे का बाप अल्लाह वाला है, लोगों के सामने अल्लाह वाला बना हुआ है और मेरा यहाँ तमाशा बन रहा है और फैसला सुना दीजिए। वो बार बार अल्लाह के नेक बंदे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। अल्लाह वाले ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। जब वो औरत बार बार मुसलसल बोल रही थी तो अल्लाह वाले को गुस्सा आया और कहने लगे कि ए बच्चे खामोश हो जा, रोना बंद कर। कुछ देर पहले दरबार में बहुत ज़्यादा शोर था, एकदम खामोश हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो बच्चा अपनी माँ के चुप कराने पर भी खामोश नहीं हो रहा था, उस अल्लाह वाले की आवाज़ सुनकर खामोश हो गया। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ऐ मासूम और खूबसूरत बच्चे, तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म किया है, न जाने तू बड़ा होकर किस नाम से जाना जाए। वो अल्लाह वाले उससे इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो बच्चा समझ रहा था और सुन रहा था। वहाँ वो काजी हिंद और वो औरत परेशान हो गए कि आखिर ये अल्लाह वाला कर क्या रहा है। वो अल्लाह वाले आसमान की तरफ आंख उठा कर देखते हैं और अल्लाह कहते हैं कि ए अल्लाह, तू अपने बंदों के गुनाहों की पर्दापोशी करने वाला है, इनके गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है। तू हर बात को जानता है, तुझे हर चीज़ की खबर है। यहाँ बैठे कुछ लोग जो तुझसे नहीं डरते, या अल्लाह ये हासदीन मेरे लिए आफियत का कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ रहे। मेरे हाल पर रहम कर और मुझ पर वो बोझ न डाल जो मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि ये बोझ उठाने की मुझ में ताकत नहीं है। तू मेरे हाल पर रहम कर। वहाँ बैठे सब लोग खामोश हो चुके थे, क्योंकि वो अल्लाह वाले की करामात को जानते थे। वहाँ सब लोग ये जानते थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वो अल्लाह वाले इस बच्चे के पास आए और उसके चेहरे के ऊपर हाथ रख कर कहने लगे कि ए मासूम जान, तू बिल्कुल बेकसूर है। हर गुनाह करने वाले को अपने गुनाह का बोझ खुद उठाना है। ए बच्चे, तुझ जैसे मासूम बच्चे को कभी भी मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मगर तेरे माँ बाप ने तुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू क्या जाने कि जब से ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा है मैं कितना बेचैन और तकलीफ़ में हूँ। ए बच्चे, मेरी बेकरारी को समझ और इस दरबार में बैठे हुए काज़ी हिंद, यहाँ बैठे हुए तमाम हासदीन को, पूरी बस्ती को, जो लोग मेरे इस इल्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो उन सब को अपने बाप का नाम बता दे कि तेरे बाप का असली नाम क्या है। उनकी ये पुरजोश और तकलीफ़ दे बातें सुनकर तमाम लोगों के दिलों में उतरती जा रही थी। लोग हैरान परेशान देख रहे थे कि एकदम दरबार में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह की आवाज़ आई। लोगों को अपने कानों पर यकीन ना हुआ। सब बैठे हुए तमाम लोग खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज़ उस मासूम बच्चे की थी। वहाँ बैठे तमाम लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये सच और हकीकत थी कि वो आवाज़ उस बच्चे की थी। अल्लाह वाले ने बच्चे के जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा और कहने लगे, ए बच्चे, तू अपने बाप का असल नाम बता। दूसरे ही लम्हे बच्चे की आवाज़ दोबारा आई और कहने लगा, मेरा बाप इस बस्ती का मौजिज़ सरदार है, यानी वज़ीर है, उसका नाम सुल्तान है। ये कहकर बच्चा खामोश हो गया। पूरे दरबार में एकदम जलजला आना शुरू हो गया और वो औरत कांपने लगी। कांपते कांपते वो गिरने ही लगी थी
थी कि अल्लाह वाले ने उसको पकड़ लिया और उसको ज़मीन के ऊपर बिठाया। वो औरत वहाँ बैठे हर शख्स को वहशत की नज़रों से देख रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश हो गई। वहाँ वो अल्लाह वाले उसी वक़्त सजदे में गिर गए और इतना रोए कि अल्लाह पाक ने उनके लिए ऐसा मौजज़ा पेश किया था। वो बेगुनाह साबित हो चुके थे और बेइख्तियार सजदे में गिर गए। इतना रोए कि ज़मीन गीली हो गई। वहाँ बैठे तमाम लोग रोना शुरू हो गए। वहाँ अल्लाह वाले के शागिर्द ने आकर उनको उठाया और कहने लगा, अल्लाह वालों पर ऐसी मुसीबतें और आजमाइशें तो आती रहती हैं। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपकी मासूमियत की गवाही एक मासूम ने दी। अब तमाम लोगों की नज़र उस सुल्तान पर थी जो बहुत ही मौजिज़ सफ़ में बैठा हुआ था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ पड़ा था। वो उठा और अल्लाह वाले से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, हाँ, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। यहाँ सब लोग आपकी इज़्ज़त करते थे, हर कोई आपका ही अकीदतमंद था। हम आपसे जलते थे, इसलिए मैंने इस औरत को पैसे दिए और इसके साथ ज़िना किया। इस तरह इसके बाद ये मासूम बच्चा इस दुनिया में आया जिसने आपको अभी गवाही दी है। आपका मैं गुनहगार हूँ। अल्लाह वाले के उसने हाथ चूमे और कहा, मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगा। अगर तुम इस औरत से निकाह कर लो, अपने इस बच्चे को अपना लो और इसके हकूक़ पूरे करो। इस औरत से निकाह करके इसको हरामकारी से बचाओ और अपने बच्चे को हराम का बच्चा कहने से बचाओ। इतना बड़ा ज़रफ़ देख कर लोग हैरान थे, क्योंकि इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद कोई अल्लाह वाला ही माफ़ कर सकता है। सुबहान अल्लाह। वहाँ मौजूद जो हिंदू थे उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए और अल्लाह वाले की इज़्ज़त और मर्तबा लोगों की नज़र में पहले से भी ज़्यादा हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हासदों की हसद और दुश्मनों के बुग़्ज़ से महफूज